So good evening, everyone. And today is the day one of this dashboard creation in Excel series. We are going to learn how to build a dynamic and interactive dashboard. And today it is just the start. Okay, we are going to cover a long journey of 5 days, and which I will be sharing a lot of things with you, and we'll be learning how to actually start building a dashboard from scratch. Okay, so earlier you might have not worked with it, or you have not seen it, or maybe you have worked but not actually seen the background, or how to build that. But today we are going to start with very basics, and we are going to take it ahead from there. Okay, so before I start, I will show you what all we are going to do, what all we are going to cover in this particular week where we are going to learn building the dashboard. So I'll share my screen and I'll show you what all we are going to do. So I hope my screen is visible to all. Yes, Yes, you can see a 5 day plan, right? So day one, day two, day three, day four, day five. So day one, we are going to talk about Excel essentials for dashboard design. Okay. So if you want to create a dashboard or you want to design a dashboard, what is the essential things that you should know in Excel? So today is the building blocks. आज हम वो सीखने वाले हैं जिसको अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो ही आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो फिर यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू डैशबोर्ड. So that is going to be the building block. That is day one. Day two may we will understand how to build up KPIs. What are KPIs? How you can make interactive KPIs or dashboard. Day three पे हम थोड़े से advanced elements of dashboard देखेंगे where we are going to work with slicers, drop downs, interactive elements जहाँ आपको wow effect आएगा कि अरे ये change हो गया वो change हो गया like that. Day four is going to be a level up where we are going to actually work with Power Query, because as I say that in when you are creating dashboard, it is 20% is all about visuals or the charts that we create. 80% is all about the data. Because अगर डेटा हमारे पास clean नहीं है, डेटा properly arranged नहीं है, if we do not have data which can be presented well, or which is presentable, which is valuable, then just building charts and visuals and making some what you can say fancy dashboard doesn't make any sense, because the essence is there should be some value addition to the decision making. So day four will be all related to how to add power to your data by using Power Query. And finally, we'll put it all together and we will create a complete end-to-end dashboard. We'll be working on the dashboard from today itself, day one, and till day five, you will be able to build your own dashboard. So day five will be a project day where everyone will showcase what they have built, and I'll be giving some assignments also. So this batch is not about attending a session and going away with it. It is all about learning together and growing together. Okay. So this is what, yeah, as you can see on the background also, this image is generated by ChatGPT. I am using AI extensively for everything that I do. So, and ChatGPT failed to put the exact picture, your own photograph, but now it has actually uh, close to near, I cannot say 100% perfect, but close to near when it comes to using pictures. Okay. So this I created on the go today, and it had given me this day five plan. I had given the material and it has drafted this. Okay. So this is what we are going to learn in the next 5 days. Now, what this is, this I will share in the group also. So you will understand what we are going to do. Now I'm going to show you a picture which you would like to note down. Okay, I would want you to note down what you see now. So keep your pen and paper ready, and what you see on the screen next, you have to either type it out or you have to write it down so that you remember what we are doing and it stays with you. So the next image that I'm going to show you is you have to note down. Okay, so I'm just sharing my screen again. Yes. So we are going to talk about 5 steps to create dashboard in Excel. Okay, so these are the 5 steps. Number one is gather and organize data. So without having a data, we cannot go ahead and we cannot do anything with the dashboard.
So dashboard starts with the D, and that D is the data. So जब तक आपके पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, विच विल मेक सम सेंस, तब तक डैशबोर्ड की हम शुरुआत नहीं कर सकते. वी कैन नॉट स्टार्ट इवन बिल्डिंग एनीथिंग अबाउट ऑन अराउंड द डैशबोर्ड. So number one is to have the data. Okay, I'll be giving you some data, dummy data sets to make you understand कि डेटा को पढ़ना कैसे होता है, कौन सा डेटा रेलिवेंट है, कौन सा डेटा इरेलीवेंट है, व्हाट यू विल use in the dashboard, what will be useless. That is what we are going to cover up today. Next step in building the dashboard is to learn and understand how to work with pivot tables. Okay, how we can summarize the data, how we can group the data, how we can club the data into different categories so that we can present it well. Once you understand pivot tables and then you can create some summaries, some tables, then we go to the next step and then we create charts and graphs. We insert charts and graph because picture speaks more than 1,000 words. So we will create some stunning visuals, some charts which will be dynamic, which will be interactive, and which will light up our dashboard. Okay. Finally, in Excel, what happens is you can put charts and all, but until you remove the background grid lines and you make some colors or you make some design, dashboard doesn't look good. Okay. So in next fourth step, we'll be learning how to format and design the dashboard. Okay. And finally, we will add some toppings to our dashboard that will be slicers and some interactive elements like drop downs and other things. So that will make a complete sense of whatever we are going to do. So these are the 5 steps. Yes. Now you can ask any questions if you have. Yes, please. Anyone has any question so far what I have said or what I have covered? तो ये 5 चीजें हमें पता होनी चाहिए. स्टेप वन इज गैदर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा. दूसरा, create pivot tables. तीसरा, create charts. चौथा, format the design. Now to design the dashboard we'll be using PowerPoint. So this is a bonus step, bonus thing that you're going to get. However, I did not market this course in that sense कि आपको एक्सेल के साथ में पावर पॉइंट फ्री मिल रहा है, फ्री फ्री फ्री. बट येस, आई एम गोइंग टू टीच यू सम स्किल्स इन डिजाइनिंग द डैशबोर्ड इन पावर पॉइंट ऑल्सो. तो वो उसके बिना हो ही नहीं सकता डैशबोर्ड, राइट? So we will be doing that also. And finally, we will do some interactive things. Okay. So I hope the steps are very clear and understandable. आपको समझ में आया कि what we are going to do, how we are going to proceed. ठीक है. If anyone has any doubts, you can ask here. Otherwise, we can start with the data set that I have given to you. So can we say that what is done through Power BI is now essentially being done using Excel plus PowerPoint, as you said? So What you are the have, differences? yeah, so let me clarify that also. What is the difference between building a dashboard in Excel and building a dashboard in Power BI? Okay. So you can say that Power BI came out of Excel only. Okay. So earlier Power BI got introduced in the year 2013. Excel 1986 से है, 1984 में आ गया था. In fact, Yes. 2003 onwards they had uh, developed Power Pivot, समथिंग लाइक दैट. डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट से उन्होंने ऐड किए थे. सो एक्सेल की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है. व्हाट इज दैट? कोई बता सकता है एक्सेल की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन, द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ एक्सेल? Not sure. नॉट श्योर. Yes, Number of limitation. rows and columns, yes sir. So Acha. how many number of rows Excel can handle? Number of data rows in rows. So to be precise, it is 10 lakh 58,546. Okay, these are the number of rows. सॉरी, आई हैव इंटरचेंज द नंबर्स, थोड़ा आगे पीछे हो गया. 10,48,576. दिस इज द राइट नंबर एक्चुअली, नंबर ऑफ रोज. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स किसी को पता है कितने होते हैं? इट इज XFD. ये मैंने डे 1 पे पढ़ाया था वैसे, है ना अर्णव? सो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? डे Yes. 10 पे पहुंच गए हैं शायद, तो इसलिए वो डे 1 वाला फीफो हो गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. XFD का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है? 16,328, 348 एक्चुअली.
So these are the these are the dimensions of the boundaries of Excel. ये Excel की सीमा है 10,48,576। इससे ज्यादा क्या रो का डेटा Excel एनालाइज नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। इफ यू गिव Excel समथिंग मोर देन दैट, इट विल कोलैप्स, इट विल हैंग। ठीक है। तो there is a problem when you are working with big data. There is a problem. So to solve that problem, we have Power BI. So Power BI doesn't load any data, doesn't store any data in its application. It just take the data from different sources. So you can have multiple Excels combining into Power BI and then building a dashboard. दूसरा, एक्सेल में जितने विजुअल टूल्स नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पावर बीआई के पास है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है। बट सिंस वी आर लर्निंग एक्सेल, लेट अस रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एक्सेल इटसेल्फ। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू कम कवर पावर बीआई आल्सो। मतलब आई एम गोइंग टू स्टार्ट पावर बीआई वंस वी कंप्लीट दिस एक्सेल पार्ट, मे बी इन द थर्ड वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। ओके। चलिए। सो नाउ let us work with the data set that I have given to you and let us start building things. ठीक है। I'll go ultra slow. I'll go with the very basics. So this is the data that I've shared. Customer feedback dashboard data. Okay. So this is the file that I'm going to open, and then we are first let us trying to understand what the data is. So I hope everyone can see the data, Yes. right? I'll move myself to the right so that you can see the sheets names also. Okay. I hope both the sheets names are visible now. Input data and reference. There are two sheets in this data set. I hope it is visible. Yes, yes. Okay, great. चलो। So now सबसे पहले first thing as a number person, because everyone, whether you are a C or a CS, we always look at numbers. Okay, so we are fascinated about numbers. So सबसे पहले what I do is I check the number of rows and columns in the data set. So this is what I'm going to do is I will press Control and down arrow, and we will come to the last row in this sheet, which is 1948. ठीक है। 1947 में we got independence. There is one more row here, 1948। ठीक है। तो 1948 से आपको कुछ याद आया? नहीं आया? चलिए। So these are the number of records that we have, 1948. And how many columns do we have? A to Q. Now how many columns in number? ये जो कॉलम है ए से लेके क्यू है, बट कितने कॉलम नंबर है ये? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? So what generally people do is they select everything, control shift and right arrow you can use, and at the bottom of the screen you see the number that is 17. Okay, you count the columns, there are 17 columns in this. हाँ, रजनी मैम को याद आ गया, मूवी भी थी 1948 अ लव स्टोरी, मैं वही पूछ रहा था। थैंक यू फॉर answering it. Okay, I was confused whether it is 1942 or 1948. I still I'm not sure. 1942 लग रहा है मुझे ऐसा, but I don't know. अगर आप कह रहे हैं तो 1948 होगा। चलिए। So coming back to Excel, how many columns do we have? तो कैसे चेक करते हैं? So control shift and right arrow when you press, you will be able to select the entire column, and bottom में you see the count which is 17. Okay, but in my class you will find something new, something different. So what I do is I'll give you a formula or a function to find out the number of columns in number. So what we'll do is we'll insert one row above this first row. ठीक है। तो what is the shortcut key to insert a row? अच्छा अर्णव, यू डोंट हैव टू आंसर, सबसे आखिरी में आप आंसर करोगे। आज जो लोग नए आए हैं, ठीक है, और जो बहुत समय बाद वापस मुझसे मिल रहे हैं, वो लोग पहले आंसर करेंगे। तो मुझे याद देखना है कि आप लोगों को कितना याद है जो आपने पढ़ा था पहले। ठीक है। तो चेतन जी, वुड यू लाइक टू ट्राई कि हाउ टू ऐड अ रो, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ रो? और एनी वन हु हैज ज्वाइन टुडे, ठीक है, दे कैन आंसर दिस। You can put it in the chat box or you can unmute and answer. How to insert a row
at this above these headers, what will be the shortcut key? How कैसे करेंगे आप लोग? How do we add a row? अरे इतने सारे, हाँ प्रतीक। So select the first row and put control and plus Plus, control and and plus. how do we select the entire row? The first row by clicking on it, or there is a shortcut key to select मतलब I know by clicking on the by clicking on the entire row. Yeah. Okay. So I'll give you one more shortcut for this. You can press Shift and Space bar. When you press Mm. Shift and Space bar, it selects the entire row. And then, as you said, we can press Control and plus key. Control Shift and plus, because and that will give you an option of inserting a row like this. Or one more way is when you press Control Shift and Space bar, you select only the table area. When you press it one more time, you will select the entire uh, Mm. row, entire column till the column XFD, and then you can press Control plus Shift plus. It will insert a row. So same way. Now once a row is inserted, we'll go to the last column and we'll type here is equal to column. Open bracket, close bracket, enter. And here we get 17. अच्छा, मेरी क्लास का एक और नियम है, एक रूल है बेसिकली विच आई फॉलो, विच एवरीवन हैज टू फॉलो, इज दैट कि जब भी आपको कुछ नया इनपुट मिलेगा कि हाँ ये हमने नया सीख लिया है, तो आप न्यू टाइप कर देंगे। इट इज अ फीडबैक फॉर मी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे ये पता चले कि मैं हर बार आके एक ही चीज बता के चले जाता हूँ या कुछ नया भी बताता हूँ, या मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू, either you can do a thumbs up or you can have a chat in the chat box, because generally after my session I review the chats also, so as to see के how was the session. Okay, so you can put, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज मैंने नई सीखी है, आज नया था मेरे लिए, you type new in the chat box so that I also get a message, yes, कि there is something new you're learning. चलिए, और उससे क्या होता है, it acts psychological also. So when you type new or you say new to yourself, okay, what happens is you are registering that in your memory also. आप अपनी मेमोरी में भी ये रखते हैं कि हाँ ये नया पढ़ा था तो मुझे याद रखना है। ओके ग्रेट। तो जो लोग न्यू न्यू लिख रहे हैं उनको पता था मतलब पहले से ना, आई एम अज्यूमिंग दैट। चलिए, सो दिस इज द न्यू रो विच वी हैव इंसर्टेड। नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट इट। ठीक है, अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे? हाउ डू आई डिलीट दैट रो? सो कंट्रोल प्लस से रो ऐड होता है, कंट्रोल माइनस से चला जाता है। सो अगेन शिफ्ट एंड स्पेस बार एंड कंट्रोल माइनस, इट विल डिलीट। ठीक है, सो दो चीजें आपने आज देखी कि शिफ्ट और स्पेस बार से पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ऐड हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस से डिलीट हो जाता है। ठीक है, लाइक दैट। कंट्रोल जेड तो सबको पता ही है कि वी कैन अनडू एंड रीडू। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग वी विल डू इज, वी हैव अंडरस्टूड कि भाई 1948 रोज है। ठीक है, पहला रो जो है वो तो हेडर है, तो जो डेटा है 1949 रोज का है, लेकिन 1948 का डेटा है, एक पहला रो तो हेडर था, और 17 कॉलम्स है। करेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इसमें से कितने कॉलम्स मेरे लिए काम के होंगे फॉर बिल्डिंग अ डैशबोर्ड, और कितने कॉलम काम के नहीं होंगे। उसके लिए आई हैव टू गो थ्रू दिस डेटा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज। ठीक है, तो let me zoom in and let us see all the headers together now. पहला है आईडी, सो वी हैव आईडी। देन वी हैव फुल नेम, सो गेस्ट 001 से लेके गेस्ट 1948 तक हमारे पास कुछ नेम्स है, डमी नेम्स, सो गेस्ट यूज कर लिया। देन वी हैव जेंडर, मेल एंड फीमेल। देन वी हैव देयर डेट ऑफ बर्थ। देन वी हैव द चेकआउट डेट। ओके, सो चेकआउट डेट है तो चेक इन डेट भी होना चाहिए था, खैर। हाँ, सो वी हैव चेक इन प्रोसेस। We do not have the check-in date, but there is a checkout date. Okay, so maybe we can create one more column. So if I want to add a column between these two, how do I add a column? Okay, same way which we as we inserted a row, we can insert a column also. So I can press Control space this time, Control and space bar. Okay, and then I can press Control Shift plus. So that will add a column. Okay, that will add a column.
So we will add a check in date. Okay, what that date will be, that we will decide later. But I'm putting a check-in date. Okay. Anyways, so then purpose of visit. So it is business, vacation, function like that. Then how did you discover us? Okay. Organization, newspaper, search engine, hotel booking sites, overall experience. How are you? Uh, so now there is one more problem, friends. What is the problem? That we cannot read what is there in this cell. So when I press F2, then only I can read. So what is the way out wherein I don't have to increase the column width, but I can still able to read the, I'll be able to read the entire heading. इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ये सिर्फ 2-3 कॉलम्स में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हेडिंग। ठीक है, द हेडिंग इज रनिंग इनटू द नेक्स्ट कॉलम, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू रीड। सो व्हाट डू आई डू? डबल क्लिक। डबल क्लिक, हाँ। तो उसके लिए तो कॉलम विड्थ बढ़ जाएगा ना, वही तो बात है। शॉर्टकट ऑल्ट ओसी है। हाँ, तो एक एक डिवाइस से है ना आपको ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लॉग्ड इन थ्रू 2 डिवाइसेस। तो ये इको इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बट यू आर राइट। हमें Pratik has also given the answer. We have to do wrap text. ठीक है, आई टोल्ड यू क्वेश्चन का आंसर देने की जल्दी रखने से पहले पहला पूरा क्वेश्चन पढ़े, सुने, ठीक है, उसके बाद आंसर करें। ठीक है, इसलिए एग्जाम में हम बोलते हैं हम लिख के तो बहुत कुछ आए थे लेकिन नंबर नहीं आए, क्योंकि वो नहीं लिखा जो पूछा गया था। और वो क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं कि पूछा क्या गया है। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब हम क्या करेंगे? वी विल यूज अ रैप टैक्स, एंड सिंस आई यूज लॉट ऑफ शॉर्टकट कीज, आई विल यूज द शॉर्ट ऑल्ट एच। होम टैब में आ गए। यहाँ पे हम थोड़ा एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल देख रहे हैं ना, बिफोर कमिंग टू डैशबोर्ड। आई एम जस्ट, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक सेशन, तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत बेसिक लगेगी, और यही पर्पस आज के सेशन का, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑल्ट एच एंड देन आई कम टू द होम टैब, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डू रैप टेक्स्ट। तो हमें रैप टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा कि रैप टेक्स्ट कहाँ है। तो ये कुछ अलाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। यहाँ अगर आप आएंगे अलाइनमेंट में, सो दिस इज कॉल्ड एज रेपटेक्स। ए बी और सी नीचे है, एक एरो है साथ में। ठीक है, उसके ऊपर लिखा है डब्ल्यू। दैट मीन्स व्हेन दिस इज द हॉट की, दिस इज द स्पेशल की। व्हेन आई प्रेस ऑल्ट, again I'll show, when I press alt, what happens is all the shortcut keys become active। ये सारी जाग जाती है ना, जैसे जुगनू आ जाते हैं रात में, तो ये जुगनू जैसे चमक रहा है। सो एच आ गया। अब होम टैब में आप एच प्रेस करेंगे, इट विल गो इनसाइड द होम टैब एंड इट विल शो यू मोर ऑप्शंस, एंड देन आई वांट टू रैप टेक्स्ट, सो आई प्रेस डब्ल्यू, एंड व्हाट डू यू सी? नाउ यू कैन रीड द हेडिंग प्रॉपरली। ठीक है, अभी ये जो इनका हाइट बढ़ गया है रो नंबर 1 का। सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज आई वांट टू अलाइन देम इन द मिडिल। ठीक है, अभी ये बॉटम में है, मुझे मिडिल में लाना है। सो व्हाट विल बी द शॉर्टकट की अगेन? सो ऑल्ट एच, होम में जाएंगे हम लोग, एंड अलाइनमेंट, अगेन आई वांट टू चेंज द अलाइनमेंट, आई विल प्रेस ए। एंड प्रीति, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट की आई शुड प्रेस नाउ? You can look at the screen and answer. What will be the next key I should press to align it to the middle? M, if I heard it right, M. So Alt H A M is aligned to the middle. Okay. And if I want to center align, so Alt H A C, it is that fast. ठीक है, तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आदत हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज एक्सेल। चलिए, तो ये सेंटर में हो गए। नाउ सपोज आई वांट टू फिट देम एज पर द स्पेस दे नीड। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इज सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से, एंड यू विल प्रेस अ मैजिकल की विच इज ऑल्ट एच ओ आई। ऑल्ट एच ओ आई, विच इज ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ओके, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जिसको जितनी जरूरत, जगह की जरूरत होगी, वो उतना स्पेस ले लेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पे हमने इस रो में रख के ऑल्टेज ओवाई किया था, इसलिए ये गायब हो गए। ठीक है, तो वी कैन मैन्युअली इंक्रीज देयर विड्थ, और वी कैन अगेन डू
Alt H O I here. So accordingly, it will fit. Okay. And I can do Alt H A C also, so that the number come into the center. Fine. I can use ref text in other columns as well. Alt H W, as simple as that. And Alt H A C. So something which is required to make the data look clean. Okay, data look clean. Chaliye. Now we can reduce this also. Now what I can do is once and for all, we can do for all. Okay, fine. So we don't have the check-in date. We'll put the check-in date after some time. But let us understand. Now, can you all tell me, we all are looking at this data for the first time. Tell me ये डेटा कौन सी इंडस्ट्री का है, कौन सी कंपनी का होगा या किस सेक्टर से है ये डेटा. Quickly, all everyone can answer in the chat or you can unmute and answer also. ये Sir, डेटा in किससे रिलेटेड है? hotel. होटल से रिलेटेड है, राइट. इट इज द डेटा ऑफ द पीपल स्टेइंग इन होटल, करेक्ट. एंड they have captured some information about them like the date of birth, the check-in date, the check-out date, the purpose of the visit, how did they discover the hotel, how are they rating the experience out of 10 or out of 5, whatever, 5. Then would they recommend to the colleagues or not? And then the various other feedback questions are there, like check-in, staff attitude, check-in process, room service, cleanliness, food quality, like that. Okay, there's a very simple data set that I've taken to start with the things. Okay, there are some references also. So references means there are this feedback is in different categories. Okay, so for in hotel industry, I was fortunate enough when I was doing my CA, I had got the opportunity to serve as a article in a firm wherein we had a client which was Taj Group of Hotels. So I was doing that audit, and during that audit, I learned a lot of things which I'm going to implement this in this session. So we have different categories in the hotel industry like uh, food and beverages, then room, then restaurant, then F&B, then you have front office, then you have housekeeping, like that. So they have categorized कि भाई स्टाफ एटीट्यूड चेक इन प्रोग्रेस ये स्टाफ के बारे में बताएगा, रूम सर्विस ये रूम के बारे में बताएगा, फूड क्वालिटी वैरायटी ऑफ फूड रेस्टोरेंट के बारे में बताएगा, और ब्रॉडबैंड और ये जिम ये फैसिलिटीज के बारे में बताएगा. तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज. And there the rating has a the rating type has a score also. So if someone has given poor rating, that means one rating score. So how we are going to use that is also we are going to discuss. Okay, so here we have this thing. um, the options, we are going to convert this into star rating 4, 5, 3, like that, and we are going to put the these into different categories, these headers into different categories. That is what we are going to understand in how to build up the dashboard for the hotel. Okay, so maybe the hotel manager or the owner has hired us as a professional to give a feedback or a dashboard for the rating of the hotel based on the inputs from the customers, from the clients, correct. Chaliye. So now what I want is, first let us complete what is remaining, what is incomplete here. I want to have the check-in date. Check-in date. Okay. और हम लोग क्या करेंगे, we will use the if function. Okay, so I'm going to cover one function over here. Okay, and based on that function we are going to calculate the check-in date. Okay, now what I'm going to do, if you see the purpose of visit, there are four purposes for which the visit has happened: business, function, other, and vacation. Okay, so I'll just put this here. Okay, so what we will do is, in the reference I will create purpose of visit. You all can do it simultaneously in your sheets. Purpose of visit, and we will put duration of stay. So based on the purpose of your visit, we will decide the duration of stay. Okay. Now we have
some four different items, okay, in this purpose of visit column. We are not going to type it. Okay, we are not going to type business, vacation, function, other. We are going to get the names from this table to the other sheet. Okay, and for this, I need some inputs. How do we do this? This table name is feedback. This table name is feedback. ये मुझे कैसे पता चला? When I click anywhere in this table, when I click anywhere in this table, on the top of these tabs, you will see the last tab would be table design. When you click on table design, the first thing that you will see is a table name. So everyone, the table name is feedback. The table name is feedback. Now, why I'm telling you this, you will come to know soon. What I want is I want to get the purpose of visit from the feedback table here. कैसे करेंगे? चलिए फटाफट से आप लोग बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा ये। अभी आपको क्या करना है? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ. I want that in this column G, whatever is the unique value, one value from this column, जो डुप्लीकेट है उनको हटा के जो सिंगल यूनिक वैल्यू रह रही है वो सब यहां आ जाए इस कॉलम में. ये कैसे होगा? टेल मी. Yeah, so remove duplicates. Yes, I was looking for this answer. यूनिक फंक्शन, ठीक है. और बाकी लोग? रजनी मैम, वुड यू लाइक टू गिव सम इनपुट्स? आपको करना होता तो आप कैसे करते? प्रीति, चंदन, चेतन जी. यूनिक फंक्शन। हाँ, यूनिक फंक्शन, ठीक है. चलिए. सो देर इज अ न्यू फंक्शन, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज यूनिक. ठीक है. पहले जो दीक्षित, ना, दीक्षित, दीक्षांत, या क्या बात है, मेरी आवाज इतनी अच्छी लगती है इको में. तो इन्होंने कहा रिमूव डुप्लीकेट्स. पहले वो ऑप्शन दिखा देता हूं. तो व्हाट ही वुड हैव डन, और व्हाट 99% पीपल इन द वर्ल्ड आई एम सेइंग डज, इज दिस ओनली. जो 99% लोग करते हैं वो यही करते हैं. वो क्या करते हैं? यहां से कॉपी करेंगे पूरी लिस्ट को और फिर इधर जाके यहां पर पेस्ट कर देंगे. ठीक है, पेस्ट वैल्यूज कर रहा हूं भाई मैं. ऐसे पेस्ट कर देंगे. फिर कहेंगे अरे ये बिजनेस दो बार आ गया, वेकेशन दो बार आ गया, चलो हटाओ इन सबको. तो फिर डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद एक रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है. यहाँ पर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे क्योंकि आजू बाजू से कुछ नहीं लेना, और रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे. और इतने मेहनती लोग हैं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद इनके पास बचेगा सिर्फ ये चार नाम. यस और नो? इतनी मेहनत करने के बाद बचा ये सिर्फ चार नाम. ठीक है. इतनी देर में तो हम टाइप कर देते हैं इनको. चलिए, आप बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी. थोड़ा आलसी भी होना चाहिए इंसान को. ठीक है. अब क्या करेंगे? अब हम दूसरा सिंपल तरीका अपनाएंगे, आलसी लोगों वाला. और क्या करेंगे? अब आप यहां पर एक फंक्शन यूज करेंगे. आप उसे बोलेंगे इज इक्वल टू यूनिक. ठीक है, यूनिक. नाउ इट इज आस्किंग फॉर एरे. एरे क्या होता है? एरे इज अ रेंज ऑफ डेटा, है ना. जो डेटा हमारा है मल्टीपल रोज में है, कॉलम्स में, उसको जब एक साथ इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं एरे. ठीक है. एरे इज द राइट प्रोनाउंसिएशन. लोग अरे भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अरे नहीं बोलना है, एरे बोलना है. तो यूनिक में हम एरे के लिए मुझे कॉलम जी चाहिए. कॉलम जी किस टेबल का था? टेबल का नाम था फीडबैक. सो आई विल टाइप द नेम फीडबैक. तो टाइप मैंने F किया, बस उसके बाद मैंने टैब की प्रेस किया एंड आई गॉट द कंप्लीट फीडबैक रिटन ओवर हियर. देन व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन अ स्क्वायर ब्रैकेट. एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट कहाँ मिलता है? ये 9 के राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको. राइट, सॉरी, पी के राइट हैंड साइड में. पी के राइट हैंड साइड में मिलेगा और एंटर के ऊपर मिलेगा थोड़ा सा लेफ्ट में. ठीक है. सो व्हेन यू टाइप दिस फीडबैक, द नेम ऑफ द टेबल, एंड यू ओपन द ब्रैकेट,
square bracket, you will see a lot of options. These options are nothing but what? Tell me, ये क्या है? ये सब कहाँ देखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले? Name of the column. These are the name of the column. Very good. These are the name of the column, and we have to select which column. Purpose of the visit. We have to select this column. So I'll go to this column and I'll press tab again, and then I will respectfully close the bracket and one more bracket, round wala. And that's it. This is the formula, and that is going to give me the result. Here are they. So दीक्षांत, अभी तक जो आप करते आए वो अच्छा था, या अभी जो आपने देखा वो ज्यादा अच्छा है? फास्टर है मतलब? सर ये ज्यादा बेटर था, ये ये ज्यादा ज्यादा बेस्ट। हाँ, करेक्ट, दिस द बेस्ट, दिस अच्छा द बेस्ट वन, दिस द बेटर वन। क्योंकि टाइम बच रहा है हमारा, ठीक है, टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है, लेकिन यस सर। जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वो ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये बेस्ट तो आपने बोल दिया, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं यहाँ पर अदर की जगह अदर्स लिखना चाहता हूं, मान लो, ठीक है, एक एस लगाना है, तो आप F2 दबाएंगे, तो F2 दबाने के बाद भी दिखा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। या आप अदर्स लिखेंगे यहाँ पर, अदर्स, तो ये एरर दे देगा, स्पेल। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस इज एन एरे फंक्शन। एरे का मतलब होता है कि जब भी हम आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो दे आर कमिंग इन ग्रुप्स। सो to do any correction, what I need to do is I need to copy this, कंट्रोल सी, ये सबको पता है। कंट्रोल वी आप आज तक करते आए हैं, आज एक कंट्रोल वी के साथ में शिफ्ट लाएंगे, एक शिफ्ट भी ऐड करेंगे। सो वी विल डू कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। I'm typing here control plus shift plus V. That is going to give you something called as paste as values. सब देखो, वो चला गया। कौन चला गया? यहां से कौन चला गया? अरे एरे, तो एरे चला गया, फंक्शन भी चला गया, यूनिक फंक्शन जो हमने यूनिक लिख के फीडबैक और नेम ऑफ द कॉलम लिखा था वो सब हाँ, चला गया। वो और गया। कौन रह गया? वैल्यू रह गया। ओनली द वैल्यू रिमेन्स एंड द फंक्शन हैज गॉन। दिस इज कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। ओके, चलिए, दिस इज व्हाट आई वांटेड। तो वो हम बहुत मेहनत करके भी ला सकते थे, रिमूव डुप्लीकेट्स करके, और हमने एक आसान तरीका अपनाया, ठीक है, यूनिक का। लेकिन अगर आप 365 यूज नहीं कर रहे हैं एक्सेल, या एक्सेल का 21 या लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, तो शायद यूनिक फंक्शन आपको दिखे ही नहीं, क्योंकि वो यूनिक है। ठीक है, तो इट विल बी अपियरिंग ओनली इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल, इट विल नॉट बी अपियरिंग इन द प्रीवियस और ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल। तो जिसने अपने एक्सेल को अपडेट नहीं किया है, वो आज भी हार्ड वर्किंग तरीके से ही काम करेंगे। चलिए, सो अगर आप बिजनेस विजिट पे आए हैं, सो मे बी यू विल स्टे फॉर अ सिंगल डे। आप बिजनेस की मीटिंग करेंगे और चले जाएंगे, तो यू विल स्टे ओनली फॉर अ सिंगल डे। अगर आप छुट्टियां मनाने आए हैं, तो आप 3 दिन 4 दिन रुक सकते हैं, तो वी कैन से कि भाई 3 डेज के लिए आप स्टे कर रहे हैं। अगर आप कोई फंक्शन में आए हैं, there is some anniversary, there is some marriage, so maybe you stay for 2 days। और पता नहीं, घर पे बोर हो रहे थे और आ गए, ठीक है, तो आप घर नहीं जाना चाहेंगे वापस, तो आप 5 दिन के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, सो बट, और 4 दिन के लिए, 5 दिन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 समथिंग आई हैव गिवन। ठीक है, सो मे बी वी कैन पुट 2 ईयर एंड वेकेशन में 3 रख देते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4। सो दीज आर द न्यू डेटा दैट वी हैव एडेड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल। ठीक है, तो मैंने इनको सेंटर लाइन कर दिया, मैं बॉर्डर लगा रहा हूं, Alt+H+B+A। Alt+H+B+A is the shortcut key to get the borders। okay, and we want to make them bold। Control 2 से भी बोल्ड होता है, Control B से भी बोल्ड होता है। and now if I press Control+T and press enter, this is now a table। ये पहले टेबल नहीं था, यहां तक इस स्टेज तक ये टेबल नहीं था। अगर आप इसमें कलर भी भर देते, Alt+H+, even if you put the color on the headers, then also it is not called as a table. It is looking like a table, but it is not a table because there is no table design over here. But as the moment I convert this into a table, I will see the table design over here. Okay, so this is the table I have added. This is a new table that we have created,
and now we are going to use all this. सो अभी क्या करने वाले हैं सर, अभी हम ये करने वाले हैं सिंपल सा कि अगर कोई जिस भी पर्पज से आया है उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे हमने निकाल दिया कि वो कितने दिन रुकेगा, ठीक है। तो इतने दिन रुकेगा, उससे पहले वाले दिन जितने दिन वो रुकने वाला है, ये चेकआउट डेट है, तो उससे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले की ये डेट आ जाए। दिस इज व्हाट वी वांट। ये कैसे होगा? सी आई एम टीचिंग, अभी हमने डैशबोर्ड चालू भी नहीं किया है, अभी हम डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। वी आर ऑन द फर्स्ट स्टेप ओनली। वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू डू द एनालिसिस। बिकॉज एज अ होटल इंडस्ट्री मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा पीक सीजन कौन सा है, मेरा स्लम सीजन कौन सा है, कौन से महीने में कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने रूम बुक हो रहे हैं, एवरीथिंग आई वांट टू नो। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द चेक इन एंड चेकआउट डेट्स। चेकआउट डेट तो दिया था, चेक इन डेट नहीं था। तो अभी हम कैसे ऐड करेंगे ये बताइए मुझे। Anyone would like to give some inputs over here? बिकॉज इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दिस इज अ प्री रिक्वेजिट। अगर आपको ये आता है तो आपको एक्सेल आता है, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको पहले ये सीखना है। चलिए बताइए। नेस्टेड इफ और इफ्स, ओके। इफ लगा लें, ठीक है। और इफ से अच्छा क्या हो सकता है? काफी सारे नए नए मेहमान हैं आज हमारे पास। उनमें से कोई बताना चाहेगा कि ये कैसे? एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट आई वांट। सबको ये समझ में तो आया ना कि मैं क्या चाह रहा हूं आपसे? या डू यू वांट मी टू रिपीट माय क्वेश्चन, और हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट? वी लुक अप, क्या बात है चेतन जी, वेरी गुड। वी लुक Sir, अप, please repeat your question, sir. ठीक है, लेट मी रिपीट। सर मेरा एक छोटा सा चीज हमें चाहिए, दिशा, है ना। व्हाट वी वांट इज, वी हैव द चेकआउट डेट। मुझे चेकआउट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कब, मेहमान जो आया था, गेस्ट, वो कब गया। ये नहीं पता कि वो कब आया। तो मैंने कहा भाई, जो भी जिस पर्पस के लिए आता है ना, वो इतने दिन रुकता है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन अटेंड करने आया है तो 3 दिन रुकेगा, ठीक है। और मान लीजिए आज उसने चेकआउट करा, तो ये टुडेज डेट हो गई, आज 5 जनवरी है। तो कब आया होगा, ये डेट मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 जनवरी में से 3 माइनस कर देंगे, तो दिस -3। 2 जनवरी को आया होगा तो 2 को रुका, 3 को रुका, 4 को रुका, 5 की सुबह चेकआउट हो गया। 3 नाइट्स। सो सेकेंड नाइट, थर्ड नाइट, फोर्थ नाइट, फिफ्थ मॉर्निंग चेकआउट। तो ये मुझे चाहिए सर। किस कॉलम में? इस कॉलम में। ये वाली डेट चाहिए इस कॉलम में। ये कैसे आएगी? क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर में हमारे पास एक कॉलम नहीं है चेक इन डेज का, वो डेज ऑफ स्टे वाला कॉलम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, डेज ऑफ स्टे या ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एज। मैंने एक और कॉलम ऐड कर लिया, डेज ऑफ स्टे। ये आपका काम आसान करेगा। तो अब मुझे सर ये जो पर्पस ऑफ विजिट है, इसके हिसाब से कौन कितने दिन रुका वो चाहिए। ये कैसे आएगा? अब आपको समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा था? सो कैन यू आंसर राइट नाउ? क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी हम करेंगे। इंडेक्स मैच नॉट सो श्योर, ओके। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, वी विल कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। हम इफ भी लगा सकते हैं कि इफ अगर बिजनेस हो तो यहाँ पर आ जाए 1, वेकेशन हो तो 2 आ जाए, फंक्शन हो तो 3 आ जाए। लेकिन उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लंबा लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे उसको, लॉन्ग फॉर्मूला हो जाएगा। हम यहाँ पर यूज करेंगे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप, और यहाँ पे ये जो लुकअप वैल्यू है बिजनेस, वो इधर भी है। मुझे बस ये चाहिए कि बिजनेस के सामने क्या नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो आ जाए बस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज अ सिंपल फॉर्मूला, most important and widely used function in Excel and the most terrified function also, जिससे लोग घबराते हैं, डरते हैं, वो है VLOOKUP। जबकि डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो लेट अस क्विकली लुक एट दिस फंक्शन, इज इक्वल टू VLOOKUP एंड लुकअप वैल्यू इज बिजनेस, ठीक है। सो आई पुट अ कॉमा एंड देन वेयर आई वांट टू लुक फॉर दिस, ये हम कहाँ ढूंढ रहे हैं?
अभी देखिए सर, आम तौर पर पहले आप अभी तक आप क्या करते आए हो वो मैं बताता हूँ, फिर अब से क्या नहीं करना है जो आप करते आए हो वो भी मैं बताऊंगा, और क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये देखेंगे कि अब तक हम क्या करते आए हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ स्टे निकालने के लिए, डेज ऑफ स्टे निकालने के लिए मैंने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर ली बिजनेस, और अब मैं इस टेबल पे जाऊंगा यहां पर, और ये टेबल को पूरी सिलेक्ट कर लूंगा। अब कुछ लोग हेडर्स के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या कुछ लोग यहां से भी, तो आई सिलेक्ट किया, आप डेटा सिलेक्ट करो, हेडर्स ना सिलेक्ट करो, तो विल सिलेक्ट डेटा। ये टेबल 5 है, इसका नाम है टेबल 5। ठीक है, सो देयर वर ऑलरेडी सम टेबल्स, ये टेबल 5 बनी है हमारे पास। ठीक है सर, तो ये हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल में से जो आप लुकअप वैल्यू देख रहे हैं वो तो पहले कॉलम में मिल गई, तो इसको मिलने के बाद कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है? हमें वैल्यू उठानी है सेकेंड कॉलम से, क्योंकि दो ही टेबल में दो ही कॉलम है, तो आई विल टाइप 2 ओवर हियर। And then the last and the most important thing is approximate match or exact match. True या false, zero या one. So what we should select is an exact match. An exact match के लिए we'll select a false or a zero, whatever the case may be, and we can press enter. ठीक है सर, सॉरी मैंने गलत जगह पे फॉर्मूला लगा दिया। आई शिफ्ट इट टू हियर, आई विल शिफ्ट इट हियर। और आना चाहिए था नंबर, लेकिन आ गई डेट, तो डेट को नंबर में कन्वर्ट करेगा जादू करके। ये हो गया हमारा कन्वर्ट टू नंबर। So in the function, why did you add the rate? So is it like आई डिड नॉट ऐड बेटा, आई नेवर एडेड, आई जस्ट सिलेक्टेड एंड ये अपने आप ही आ गया। so basically we have to select the row and column S2, right? या नो, G2 ना, H2, sorry, yes. So again I'll do, I Yes. selected H2 only. See, I selected H2 only, and this you should not have asked this question at this moment. But ये तो like आपको पता होना ही चाहिए था कि आप टेबल में काम कर रहे हैं। Whenever we select any row in table, yeah, yeah. it gives the header name, not the cell name. You're not eligible to ask these questions, If I Arnav. have noticed for the first time, sir, to be very frank. Oh my God. I don't know. Anyways, okay. How many people have noticed this for the first time कि ऐसा होता है? Preeti is What? not saying anything. Preeti, are you there? Or can you type in the chat key? Did you notice this for the first time, or it was there in your notice? Chandan and all those people who have been attending the sessions. अच्छा, बाकी लोग जो नए आए हैं, आपको ये बात पता थी या आज पहली बार डिस्कवर हुआ है ऐसा कि एट द रेट करके भी कुछ आ जाता है? सेल एड्रेस आने की बजाय H2 आना चाहिए था यहाँ पर, बिकॉज आई सिलेक्टेड H2। नाउ इफ आई टाइप H2 एंड दिस इज, अभी देखो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी, है ना? आई ऑलवेज से इन माई सेशंस दैट डू नॉट राइट द फॉर्मूला इन द सेल, राइट इट इन द फॉर्मूला बार, इसकी जगह वही है। तो यहाँ लिखते हैं हम वी लुकअप। यहां मैं सिलेक्ट, यहां मैं लिखूंगा H2, H2 कॉमा। अब H2 लिखा तो इसने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। वी कैन सी दिस, अर्ली पहले यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था क्योंकि सेल का साइज छोटा था, उसी के अंदर सब कुछ खिचड़ी बन रही थी। अभी अर्नव H2 आ गया, ठीक है, तुम्हारे को वो मिसिंग हाँ लगा था हाँ ना, H2 yes आ गया। हाँ, नाउ अगेन आई विल गो टू दिस शीट एंड आई विल सेलेक्ट दिस टेबल। आई विल पुट 2 कॉमा 0, फॉल्स लिखे या 2 लिखे, एक ही बात है, yes 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 और एंटर कर देते हैं। yeah. तो तुमने ये क्वेश्चन तो पूछ लिया कि सर ये H2 आ गया यहाँ पर, है ना, एट द रेट आया, ये क्यों नहीं पूछा कि टेबल 5 क्यों आ रहा है यहाँ पर? So रेंज क्यों boom. नहीं आ रहा उस सेल का? So हमने तो क्योंकि सेल सेलेक्ट, हमने तो रेंज सेलेक्ट करी है ना, यहाँ से जाके ये रेंज सेलेक्ट करी है, तो इट शुड हैव गिवन मी G2 से लेके H5। yeah, because that I thought because the table 5 is already named, right? Like if we go to table design, we can say table हाँ 5 वहाँ पे. हाँ, I thought that way. In ओके that, ओके ओके, yeah. ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने ये चेंज किया। सो विच एवर कॉलम आई विल गो टू, इट विल गिव मी द कॉलम नेम एट द रेट। एट द रेट का मतलब होता है कि इट विल कवर ऑल द रोज इन द टेबल। तभी तो क्या होता है कि वेन एवर वी आर टाइपिंग एनी फॉर्मूला इन एनी वन सेल, इट गेट ऑटो फिल्ड इन ऑल द सेल्स ऑफ द टेबल। Yes yes. वो तो होता है. वो तो होता है, वो इसीलिए तो होता है, उसका कारण यही तो है। समझा. हम्म।
एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि मुझे कुछ हलचल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है ना? दिखाई तो वैसे भी नहीं देगी, सबके कैमरे बंद है, लेकिन कुछ चैट बॉक्स में भी कोई हलचल नहीं है ना, किसी की माइक से कुछ आवाज आ रही है। तो आई वांट लाइक टू अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, दिस ऑल वेरी बेसिक थिंग्स, आई मीन हो सकता है थोड़ा सा एडवांस हो गया हो, लेकिन ये बेसिक था। तो हमने यहाँ पर वीलू का सिंपल फंक्शन यूज किया है, एंड अब यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू H2S3, क्योंकि हमने फॉर्मूला वहां लगाया था। अगर हम टेबल के अंदर लगाते तो कुछ और आता, ये @ करके आता, वो भी कुछ नहीं है, वो सेल का हेडर ही सिलेक्ट कर रहा था। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस डेट एंड subtract from this days of stay, and I'll get the check-in date. That's it. So checkout date minus days of stay is giving me check-in date. And you can see it is coming same for all, same in the sense correct for all. जैसे 17 तारीख को 2 दिन के लिए रुके थे, 15 16 को रुके, 17 को चले गए। तो पहला मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। सो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ DD, सॉरी, DD YY like that. Okay, is it clear to all? आई हैव एक्सीडेड द टाइम, थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में आज 2 4 मिनट लेट हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा अभी, वी विल एंड दिस सेशन एट आफ्टर 5 मिनट्स। 9:45 पे आज खत्म करेंगे, कल से एग्जैक्ट 8:30 स्टार्ट होगा, 9:30 आई विल कंप्लीट माई एक्सप्लेनेशन। 9:30 ऑनवर्ड्स दोज हु वांट टू स्टे फॉर डाउट्स दे कैन स्टे बैक, ठीक है? बाकी हम स्ट्रिक्टली 1 आवर में खत्म करेंगे अपना कंटेंट। यस, नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन सो फार? या किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बिंदास। आई विल हॉल्ट हियर। So just to confirm, instead of VLOOKUP, can we apply the combination of ifs and index and match? No, Not we don't have to do these daring things. Either use index or match or use if. Why you want to combine both? so basically the output of if and the output of index and match will be the same. सेम, यस। Yeah. एक्सेल में एक चीज को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, हमें वो तरीका अपनाना जो आसान हो और जो इफेक्टिव हो, इन द मैनर कि इट सेव टाइम्स, इट सेव एफर्ट्स, क्योंकि रिजल्ट वही आने वाला है। So instead of VLOOKUP, we could have applied ifs also, na, here. यस 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 यस। Okay, got it. चलो, एनी डाउट स्टिल हियर? किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है, या कोई फीडबैक है? आपको स्पीड ठीक लग रही है, दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या ज्यादा है या तेज है या ओके है, फाइन है? ठीक है, बिकॉज अनटिल अनलेस आई गेट सम फीडबैक, मुझे तो लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ सच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेज फ्रॉम एनीवन, ठीक है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास डेटा पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मैंने जानबूझ के वो डेट चेक इन कॉलम हटा दिया था कि अगर वो कॉलम नहीं होगा तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, एंड वी अंडरस्टूड how we can add some columns and how we can have work with tables and how we can gather the data that we require for analysis. अभी भी हमारा जो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज एंड उसका एक छोटा सा हिस्सा बाकी है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला था आई विल टेक 2 3 मिनट्स मोर, आई विल कंप्लीट दैट लेग, and then I'll keep it open for anyone to ask any questions. Okay, so simple, some small thing that we are going to do, but very important for this day to complete. We'll copy this headers, ठीक है? I will copy this. We'll go to this reference sheet. This is a helper sheet you can call, and in this column J, I'll leave this column I'll in this column J. Now what I have copied is the रो नंबर 1 मैंने कॉपी किया है, जिसमें ए से लेके एस तक कॉलम है, ठीक है? वी एडेड सम मोर कॉलम्स, पहले क्यू तक था, अब 19 कॉलम हो गए, 2 कॉलम हमने ऐड कर दिए थे, एक ड्यूरेशन ऑफ स्टे, एक चेक इन। अब हम क्या करेंगे, I will copy paste this in such a manner that it doesn't come in row but it come in column J only. So what I'll do is control
Alt and V. Okay, instead of doing Control Shift and V, I am now doing Control Alt and V, and then I press Alt E. Alt and E, and you will come to transpose. Transpose पे tick लग गया. Now I'll press enter, and you see all those columns have now all those items of row number one in different columns have come to single column and different rows. Is it clear to all? ये कैसे हुआ? इसके लिए I've used another shortcut key which is Control plus Alt and V. This is called as paste as transpose. ठीक है, तो ये Alt और Shift से कंट्रोल के साथ यूज करने में ये सब कुछ बदल जाता है. Is it making sense whatever we are doing No, today? no, like Control Alt and we will open the box, right? And we have to Yes. transpose. Then you have to select yes, it will Yeah, open the box. got it, got it. ट्रांसपोज का भी कुछ शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट और टी होता है शायद ट्रांसपोज का, वो भी होता है, बट आई एम नॉट Yeah, गोइंग टू दैट मच इन yeah, yeah, डिटेल्स. या yeah. Makes sense, makes sense. okay, so we have listed down everything in one column. Now why I've done so? Because I want to identify what is important, what is not important for analysis or for creating the dashboard. Now tell me, is the ID important? Do we really need this column No, ID, guest ID? No. So we'll strike it off. है ना, स्ट्राइक ऑफ के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? स्ट्राइक ऑफ के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्ट्राइक ऑफ? ये आपने बताया नहीं सर. बहुत अच्छे. सही में नहीं बताया सर ये तो. मतलब फिर ये क्या? स्कूल में ही सिखाया जाता है कि जब कोई आंसर नहीं आता ना, बोलो टीचर को कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं गया भाई, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया आपने. और फिर टीचर क्या होता है ना, वो भी अपना स्टडी मटेरियल अपने पास में ही रखते हैं. अच्छा बेटा ठीक है, ऐसी बात है, चलो अभी दिखाता हूँ मैंने कब पढ़ाया था. डॉक्यूमेंट में. है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कब पढ़ा था हमने ये और कहाँ पढ़ा था. ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको. शॉर्टकट कीज पढ़ाई थी मैंने डे वन पे या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई हाँ, थी. सबको बताया था आपने. हाँ, तो शॉर्टकट की के अंदर ही था ये. अच्छा. हाँ, एफ. अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ मैं. कंट्रोल, मैंने ये पहले दिन पढ़ाया था, कंट्रोल ए से लेके जेड वाली हाँ, सारी हाँ, शॉर्टकट हाँ. कीज. तो और बट ऑल्ट. स्किल्स आगे स्ट्राइक ऑफ. आई एम नॉट श्योर हाँ अबाउट दैट. हाँ करेक्ट, अभी इसलिए याद दिलाने के लिए मैं सब अरे याद हाँ, ये करता तो हूँ. याद भी किया. गॉट किया इट, था गॉट ना इट. ये. यस, यस. ये क्या है? हाँ, Control 5. हाँ ठीक है. यस, यस. कंट्रोल 5 से होता है स्ट्राइक आउट. ये सब प्रैक्टिस करने से याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा. ठीक है. सो कंट्रोल 5 ये काम का नहीं था. कस्टमर का नाम काम का है क्या? डैशबोर्ड में अगर मुझे देखना है कि मेरी होटल में रेगुलर विजिटर्स कितने हैं, कि बार बार आते हैं, हर महीने आते हैं, हर 6 महीने में आते हैं, या दे आर लॉयल कस्टमर, हर साल आ रहे हैं. ठीक है. सो यस, आई मे नीड द नेम फॉर फाइंडिंग आउट द टॉप 10, 5, वट एवर, टॉप 3 क्लाइंट्स. ठीक है. जेंडर हमें पता होना चाहिए, हाँ, कितने मेल आ रहे हैं, कितने फीमेल आ रहे हैं. सो अगेन दिस इज व्हाट आई नीड फॉर माय एनालिसिस पर्पस. डेट ऑफ बर्थ क्यों जरूरी है हमारे को एनालिसिस के लिए? डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है क्या? व्हाट काइंड ऑफ डिटेल वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, स्पेशल अनलेस ऑफर. वी आर गोइंग टू गिव सम ऑफर टू देम. वो तो मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट हो गया, कि बर्थडे पे बोल दे सर आपको स्टे में इतने डिस्काउंट मिल जाएगा, केक में इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, एनिवर्सरी पे ये हो जाएगा. उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ कहाँ काम में आएगी बताओ? डेट ऑफ बर्थ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? एज. और एज से मुझे क्या पता पड़ेगा? डेमोग्राफी. डेमोग्राफिक. यस, यस. यस, अबाउट टू से दिस. यू नो ना, आई कैन रीड योर माइंड. यस, यस. पहले पता चल गया था. So we can get the range of the people
हु आर कमिंग टू आवर होटल, उनकी एज बैंड क्या है, यंगस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, सीनियर ज्यादा आ रहे हैं, मिक्स आ रहा है, लाइक दैट, सो दैट वी कैन क्यूरेट सम ऑफर्स फॉर देम। तो आप जो भी डेटा के साथ डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हो, पहले ओन दैट डेटा, आप उसके मालिक बन जाओ कि यार मैं ही हूं इसका मालिक, ठीक है। और मुझे एनालिसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिएंगी। सपोज एज अ सीए अगर आपके पास कोई आता है कि सर ऑडिट करानी है, तो आप ऑडिट पर्पज से उसको देख सकते हो, या आप बोलेंगे सर इसका कुछ एमआईएस रिपोर्टिंग बना के दो, हमारे को ना बिजनेस इंप्रूव करना है, प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, टर्नओवर बढ़ाना है। तो आप उसको तब तक नहीं समझा पाओगे जब तक आप खुद नहीं समझोगे डेटा को। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा इन एंड आउट, ठीक है। तो चेक इन चेकआउट से हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ स्टे आ गया, कितने दिन लोग रुक रहे हैं, ठीक है, कब कब रुक रहे हैं, पर्पस क्या है विजिट का, कहाँ से वो लोग हमारे को ढूंढ रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट आर रीच, ठीक है, विच मीडियम इज गिविंग अस दैट रीच, रीच कहाँ से आ रही है, कौन सा सोर्स से हमारे को रीच ज्यादा आ रही है, ठीक है। देन ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस कैसा है, हमको रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब तो फीडबैक वाले सिस्टम है। तो इंस्टेड ऑफ आईडी, आईडी को छोड़ के बाकी सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो देर आर 18 कॉलम्स और 18 फील्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। उसमें से ये जो रेटिंग्स वाले हैं जितने भी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, आई एम जस्ट मार्किंग them with the color. These all we can categorize and we can call them as measures. ओके, मेजर्स बोल सकते हैं इनको। क्यों बोल सकते हैं मेजर्स? बिकॉज दे आर गोइंग टू मेजर आर परफॉर्मेंस, वो हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो गए, मेजर हो गए, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज मेजर्स। ओके, दीज आर कॉल्ड एज मेजर्स। बाकी ये सब क्या होंगे सर फिर? ये जेंडर, एज, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, और ये सब नाम को छोड़ दो, नाम और नाम भी ले सकते हैं चलो इसमें। दीज आर ऑल कॉल्ड एज, ठीक है, दैट इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे। दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। सो ये दो टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मेट प्रिंटर ओवर हियर, ठीक है। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज हमें छोटा करना पड़ेगा। मेजर्स एंड डायमेंशंस, सो डीएम हम याद रख सकते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डीएम, डायमेंशंस एंड मेजर्स। सो डायमेंशन मतलब कि whenever we are going to create a dashboard, what is going to become the base for my dashboard? So these areas will become the base, and based on these we are going to check the performance, or we are going to measure these based on the base over here. सो डायमेंशंस हमारा बेस बनेंगे और उसके हिसाब से हम इनको मेजर करेंगे। दिस इज हाउ द डैशबोर्ड इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। क्लियर? Yes. अंडरस्टूड? सो दीज आर डायमेंशंस एंड दीज आर मेजर्स। सो हमें ये पता होना था, दिस वाज अ टुडे वाज जस्ट अ वार्म अप सेशन फॉर यू ऑल, वेरिन आई हैड एक्सप्लेन कि ये सब हमारे पास डेटा सेट है, हमने डेटा को क्लीन किया, हमने डेटा में कुछ कुछ नए कॉलम ऐड करे, कुछ एक्सेल की चीजें देखी कि हाँ एक्सेल में क्या, डैशबोर्ड से बनाने से पहले इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। और फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बिल्ड अप द स्मॉल डिफरेंट एलिमेंट्स। कल हम पूरा डैशबोर्ड इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे इस डेटा सेट के साथ। सी, वर्किंग विद द एनी फाइनेंस डेटा, एनी अदर डेटा, बिजनेस डेटा, दैट इज ओके, कोई भी तरीके का डेटा लियो, उस पर हम काम कर सकते हैं। व्हाट वी शुड नो इज कि हाउ टू यूज दैट डेटा, उस डेटा का यूज क्या होगा, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, then other things are very simple. Okay, so with this we will close this session. Before we close and we say good night to each other, okay, if anyone has any questions, anything to share about the session, you can share it in the chat, you can speak, and then we will close it. आज का थोड़ा सेशन लंबा हो गया,
बट टुमारो से वी विल कीप इट दिस थिंग 10-15 मिनट तो ऊपर होते ही हैं सेशन में, क्योंकि डिस्कशन होता है, और जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक मेरा मन नहीं करता कि मैं क्लोज कर दूं सेशन. आई डोंट लुक एट टाइम व्हेन आई एम डिलीवरिंग द सेशन. ओके, चलो. सो यस, नाउ two important things before I want to share here. Number one is the recording for the sessions. I will try that you get the same night. जैसे आज ये खत्म हुआ हमारा सेशन 10 बजे, 11 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए. ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट. कई बार ऐसा नहीं भी हो पाएगा, तो अर्ली मॉर्निंग बिफोर यू वेक अप आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग. ठीक है. रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेसिबल होगी? सो यू हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म which I have shared in my this thing. If in case you have not filled that Google form, I'll share the link in the Zoom chat and in the group also. You please do that, because I am going to give you access on your email ID. I'm going to upload this on my YouTube, and I will keep it as private. Okay. So then only those people who have the access of the viewing rights on their email ID through which you have registered. So through that email ID, you will be able to see the link to the video, because it is a paid session. So I don't want it to be public link. So ये paid है. Maybe day one I can put it as a public also for everyone to see, and then decide whether you want to go. And yes, I can put it on the G drive also. Yes, I'll put it on the G drive and I'll share you the access. But you will get the access through the email ID only. So those who have not filled the form, I'll put that in the WhatsApp group. You fill it again, and I will share the access tonight only to everyone. Secondly, तो आप वो उसका एक्सेस जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा. आप कितना भी जब भी चाहें, सालों बाद, 2 साल बाद देख सकते हैं उस वीडियो को कभी भी. बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, जो भी हम कर रहे हैं वो आप साथ साथ में टाइम निकाल के प्रैक्टिस करिए. ऑफिस से टाइम निकालिए, सुबह जल्दी उठिए, सेशन से पहले टाइम निकालिए, बट डोंट नॉट कम ब्लैंक इन द सेशन कि कल 8:30 बजे 5 मिनट पहले लैपटॉप खोला और बैठ गए. ऐसा मत करना. सिर्फ आधा घंटा आपको चाहिएगा. आधा घंटा देके एक बार डेटा को स्टडी कर लो, एक बार रिवाइज कर लो हमने क्या क्या करा है. इफ यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग इट्स ओके. इफ यू कैन नॉट वॉच द रिकॉर्डिंग, उसको फास्ट फॉरवर्ड में एक बार गो थ्रू कर लो. कहीं पे कोई चीज समझ में से रह गई हो, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे रिविजिट करनी है, वो कर लीजिए. सो इफ यू कम प्रिपेयर्ड, यू विल बी मोर मच मोर इन अ वे टू ग्रास्प थिंग. और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे, ये 2-3 things will become little complex, and that is the that is the way to learn actually. तो हम बेसिक से स्टार्ट हुए, लेकिन एडवांस तक जाना है तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी ही. लेकिन आप अगर डेली पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, एंड यू विल एंजॉय दिस जर्नी. ओके. एंड that's it, what I wanted to say I have said. If you want to share anything, if you want to say anything, you can put your things here. I think I have answered most of the queries that you might have. Then if you want to ask anything, you can ask. So I'm asking that can you share